Good morning. We are in the second session of e-workshop on modern surveying. Yesterday section in session 1, we discussed about how to determine area of irregular figures using different methods. साथ ही हमने प्लानीमीटर का क्या यूज है फॉर डिटरमाइनिंग एरिया, हमने वो भी देखा था. एंड प्लानीमीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थियोडोलाइट, EDM and total station. So what is theodolite and what is the significance of theodolite in surveying? So theodolite is a precise instrument for measuring angles in horizontal and vertical planes. Yesterday we saw the working of auto level and what are the different limitations of auto level. It can be work in horizontal direction only. So auto level से आपको सिर्फ horizontal measurements ही मिलेंगे. But what about vertical angles? What about inclination? So for calculating vertical angles, theodolite is one of the instrument. Now, what is the need of vertical angles? So to understand the need of vertical angles, we should aware about different types of surveying or classification of surveying. क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग से ही आपको पता चलेगा कि थियोडोलाइट की जरूरत क्यों पड़ी. इफ वी primarily divide the surveying, or primarily if you want to see how many types of surveys are there or how many divisions of surveys are there, then there are of two types or there are of two divisions: plane surveying and geodetic surveying. Now what is plane surveying? When curvature of earth is not considered. What is the meaning of curvature of earth? अगर आप सर्वेइंग में अर्थ का शेप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, देन सर्वेइंग इज टर्म्ड एज प्लेन सर्वेइंग. Obviously, if you are not considering curvature of earth, then primarily you are working on horizontal plane only. And if you want to determine vertical planes or vertical angles, then curvature of earth should be considered. So in plane surveying, अगर मैं लिमिटेशन की बात करूं, then plane surveying is suitable for area less than 250 kilometer square or 100 mile square. अगर कोई एरिया है जिसको आपको सर्वे करना है, उसका एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, then plane surveying is suitable. Now coming to geodetic surveying, when shape of earth is considered, अगर आपने shape of earth consider किया है, then it is a type of geodetic survey. Obviously, in case of geodetic survey, the survey area will be more. So इसमें क्या बात याद रखना है आपको, that in plane survey we are not going to consider shape of earth or the curvature of earth, but in case of geodetic survey we consider curvature of earth or shape of earth. Now coming to classification of surveying, then there are several classifications of survey. ये आपने पहले भी स्टडी कर रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ आपको, तो देखिए, फर्स्ट वन इज कंट्रोल सर्वेइंग.
So control surveying is to establishing horizontal and vertical positions, और अगर आप कंटूर पॉइंट्स मार्क करना चाहते हैं then it is a type of control surveying. Control surveying is done by Survey of India. Now next classification is topographic survey. So topographic survey is to show natural features such as river, hills, lake, etc. अगर आपको कोई सर्वे मैप प्रिपेयर करना है, उसमें अगर आपने नेचुरल कैनाल्स शो की हुई हैं, कोई हिल शो किया हुआ है, या कोई बिल्टअप एरिया शो किया हुआ है, देन यू आर डूइंग टोपोग्राफिक सर्वे. नेक्स्ट वन इज कैडेस्ट्रल सर्वे. So fixing of properties or fixing of property lines, buildings, etc. is a type of cadastral survey. अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मार्क करनी है, then it is a type of cadastral survey. Then another type is, or another classification is engineering survey. So to obtain data for designing and type of project, any type of project का अगर आपको किसी भी टाइप का अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसकी आप डिजाइनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, देन इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे. फॉर एग्जांपल, अगर आप रोडवेज के लिए कोई डिजाइनिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा, या रेलवेज के लिए और वाटर सप्लाई के लिए अगर आपको वाटर पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन करना है, तो उसके पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे. नेक्स्ट वन इज माइन सर्वे. अगर अंडरग्राउंड वर्क्स आपको कोई करना है तो माइन सर्वे पहले से ही करना पड़ेगा आपको, जिसमें बोर होल्स भी आते हैं, पिट्स भी आते हैं, माइंस भी आते हैं. देन एस्ट्रोनॉमिक सर्वे, ये आपको पता है कि अगर आपको लोकेशन निकालनी है अर्थ पॉइंट पर, एब्सोल्यूट लोकेशन निकालनी है, तो आप अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में और लोकल टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्टार की लोकेशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, देन यू आर डूइंग एस्ट्रोनॉमिक सर्वे. सो इसके साथ में एक सर्वे और होता है जिसको हाइड्रोग्राफिक सर्वे बोलते हैं, जिसमें आप अंडर वाटर जो भी सर्वे करते हैं, अगर आपको ओशन का या किसी सी का डेप्थ कैलकुलेट करना है, देन इट इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे. So coming to theodolite and its significance in engineering. So मैंने आपको जैसा पहले ही बता दिया कि theodolite is a precise instrument for measuring angle in horizontal and vertical planes. So अब आपको elevation भी calculate करने पड़ेंगे. Now if we classify theodolites, then theodolites may be classified as transit theodolite and non-transit theodolite. Now what is the meaning of transit theodolite and what is the meaning of non-transit theodolite? Transit theodolite means turning of telescope in the vertical plane about horizontal axis. अगर आप टेलीस्कोप को, आईपीस को वर्टिकल एक्सिस पर टर्न कर रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पर, then the turning of that telescope is termed as transiting. So in case of transit theodolite, आईपीस आप 180 डिग्री टर्न कर सकते हैं. मतलब आप एक ही आईपीस से फेस राइट और फेस लेफ्ट रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्रांजिट थियोडोलाइट का. बट इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, आप 180 डिग्री टर्न नहीं कर सकते हैं आईपीस को. मीन्स आपको एक ही डायरेक्शन में सर्वे करना पड़ेगा. आप अगर चाहेंगे कि आप रिवर्स डायरेक्शन में सर्वे करना चाहें, तो आप आईपीस टर्न नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो नॉन ट्रांजिट आईपीस है. सो ट्रांजिट एंड नॉन ट्रांजिट मैंने आपको बताया.
इसके साथ में ऑटो लेवल के बारे में हमने कल बात की थी। ऑटो लेवल टर्न हो सकता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तभी तो उसकी लिमिटेशन है कि हम ऑटो लेवल से एलिवेशन नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वर्टिकल एंगल्स नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। सो टर्निंग ऑफ आईपीएस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टर्म्ड एज स्विंगिंग। सो ट्रांजिटिंग एंड स्विंगिंग, these are two technical words जो आपको याद रखने हैं। नाउ थियोडोलाइट में रीडिंग्स नोट करने के लिए कौन से स्केल्स होते हैं या कौन सा ग्रेजुएशन गिवन होता है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल्स आर गिवन इन द थियोडोलाइट। एक वर्नियर थियोडोलाइट होता है फॉर रीडिंग द ग्रेजुएटेड सर्कल इफ वर्नियर्स आर यूज्ड। सो जिसमें वर्नियर यूज होता है उसको वर्नियर थियोडोलाइट कहते हैं, जिसमें माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज यूज होता है उसको माइक्रोमीटर थियोडोलाइट कहते हैं। If a micrometer is provided to read the graduated circle, then micrometer theodolite is used. So vernier theodolite and micrometer theodolite. So if we talk about vernier theodolite, then you can see a very complicated type of design. यहाँ आप देखिए ये दिस इज आई पीस, और ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में आप एक तरफ तो देखेंगे आई पीस जहां आप फोकस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज टर्म्ड एज डायफ्राम। ये वर्टिकल कंपास है टू डिटरमाइन और टू नोट वर्टिकल एंगल, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल compass. Vertical compass is attached on vertical plate and horizontal compass is attached on base plate. Now, what is the importance of base plate? जो थियोडोलाइट का साइज होता है, दैट साइज इज डिपेंडिंग ऑन बेस प्लेट। बेस प्लेट का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा साइज थियोडोलाइट का भी होगा। नाउ कंपास को भी आपको सेट करना है, तो देखिए वर्टिकल कंपास सेट हुआ या नहीं हुआ, उसका जस्टिफिकेशन वर्टिकल कंपास के साथ में लगा हुआ स्पिरिट लेवल देगा। हॉरिजॉन्टल कंपास सेट हुआ है कि नहीं, उसका जस्टिफिकेशन आपको हॉरिजॉन्टल कंपास के साथ में लगा हुआ स्पिरिट लेवल देगा। नाउ इंस्ट्रूमेंट इज सेंटर्ड और नॉट, इसके लिए सेंटरिंग बबल भी गिवन रहता है। देखिए अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करना है तो आपको टेम्पररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। कल हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट्स भी समझे और परमानेंट एडजस्टमेंट्स भी समझे, बट इन केस ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट परमानेंट एडजस्टमेंट्स आर आल्सो देयर। सो कौन से टाइप के परमानेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं मैंने कल डिस्कस किया था, आज भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम थोड़ा टेम्पररी एडजस्टमेंट्स के बारे में समझ लें। So these are the leveling screws and temporary adjustments are centering, leveling and focusing. So again आपको centering करना है with the help of plumb bob और laser plummet। ये तो मैकेनिकल टाइप ऑफ थियोडोलाइट है तो इसमें तो लेजर प्लमेट गिवन नहीं है, तो आपको प्लम बॉब यूज करना ही पड़ेगा। नाउ विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रूज यू कैन लेवल द इंस्ट्रूमेंट, जिसको लेवलिंग कहते हैं। सो 3 लेवलिंग स्क्रूज आर देयर। सो आपको विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग स्क्रूज यू हैव टू डू लेवलिंग। नाउ फोकसिंग के लिए आई पीस आपको गिवन है, तो आई पीस विद द हेल्प ऑफ आई पीस यू हैव टू फोकस ऑब्जेक्ट। साथ में जो डायफ्राम है, डायफ्राम में अगर क्रॉस वायर्स दिए हैं, बिल्कुल दिए हुए रहते हैं, तभी तो आप रीडिंग्स को रीड कर पाते हैं। सो जब आप फोकस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्रॉस हेयर्स हैं, दैट क्रॉस हेयर्स आर विजिबल और नॉट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट परमानेंट एडजस्टमेंट्स, देन मैंने कल आपको कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट्स बताए थे, देन कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन should coincide with
एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोकस किया है और वो क्लियरली फोकस हो रहा है, मीन्स दैट वन ऑफ द परमानेंट एडजस्टमेंट इज ओवर. जब तक लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑफ लाइन और लाइन ऑफ साइट कोइंसाइड नहीं होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, इंस्ट्रूमेंट के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, तब तक आप यू आर नॉट एबल टू फोकस द इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, यू आर नॉट एबल टू फोकस द ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट फोकस हो रहा है मीन्स you are doing one of the permanent adjustment. Now adjustment with this vertical compass is also one of the permanent adjustment, and adjustment in this horizontal compass is also one of the permanent adjustment. So आपको permanent adjustment करना है तो उसमें आपको लाइन ऑफ कॉलिमेशन का भी ध्यान रखना है, साथ ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपास का भी ध्यान रखना है. अगर आपने इसको एक बार एडजस्ट कर दिया, देन आप पूरा जो सर्वे की फील्ड है जिसमें आप n नंबर ऑफ टाइम्स इंस्ट्रूमेंट स्टेशन चेंज करेंगे, आपको बार बार ये परमानेंट एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे. बट एट एवरी स्टेशन पॉइंट यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट्स. सो इनका आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए. देखिए यहाँ पर छोटे छोटे आईपीज और दिए हुए हैं. दीज आईपीज आर यूज्ड टू रीड एंगल्स. होल्डिंग डिवाइस भी होती है कि आपको आईपीस को किसी पर्टिकुलर एंगल पर होल्ड करना है, तो उसके लिए वर्टिकल क्लैंप भी होता है और हॉरिजॉन्टल क्लैंप भी होता है. यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज हॉरिजॉन्टल क्लैंप. अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थियोडोलाइट को मूव नहीं करना है, इफ यू वांट टू होल्ड द थियोडोलाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन आपको हॉरिजॉन्टल क्लैंप यूज करना पड़ेगा. ऐसे ही अगर आप आईपीस को रोटेट नहीं करना चाहते हैं, टर्न नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्टिकल क्लैंप होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल थियोडोलाइट, दैट अभी मैंने आपको मैकेनिकल टाइप ऑफ थियोडोलाइट बताया. मैकेनिकल टाइप ऑफ थियोडोलाइट आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है और कितना कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन है, एंड बहुत सारे एडजस्टमेंट्स भी आपको करने हैं, फिर तरह तरह की रीडिंग्स भी आपको इसमें नोट करनी पड़ेगी. सो द प्रोसीजर इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें एरर के चांसेस तो रहते ही, बट दिस इज बेसिक टाइप ऑफ सर्वेइंग इक्विपमेंट. सो आपको अगर मॉडर्न इक्विपमेंट चलाना है सर्वेइंग का, तो उसके पहले आपको बेसिक इक्विपमेंट्स तो आने ही चाहिए. सो मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल थियोडोलाइट. सो यहाँ आप देखिए कि कितना सिंपल सा एक इसका डिजाइन है, कितना सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है. इसमें आईपीस दिख रहा है एंड दिस इज मॉनिटर, जिस पर आपको रीडिंग्स भी शो होंगी, साथ में आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं. सो ये हैंडल है. दिस इज प्री फोकसिंग यूनिट. आप प्री फोकस कीजिए पहले अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद में आप उसको फाइनली फोकस कीजिए. सो दिस इज आईपीस. आईपीस के साथ में प्री फोकसिंग यूनिट. यहाँ बैटरी के लिए आपको एक बैटरी यूनिट भी दी हुई है, तो जहाँ पर बैटरी लगाना है इस जगह पर आपको बैटरी लगाना है. नाउ मैंने आपको फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग के बारे में भी बताया था. तो इन केस ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट आपको ये देखना है कि बैटरी कौन से साइड में. इफ बैटरी इज इन राइट साइड ऑफ आईपीस, तो आप फेस राइट रीडिंग ले रहे हैं, और अगर आप इसको ट्रांजिट कर दें 180 डिग्री, देन ये जो बैटरी है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो वो फेस लेफ्ट रीडिंग हो जाएगी, और वाइस वर्सा. इन केस ऑफ मैकेनिकल थियोडोलाइट, जो ये वर्टिकल कंपास है, वर्टिकल कंपास आपके किस डायरेक्शन में, ये फेस लेफ्ट में, ये राइट हैंड साइड में तो फेस राइट रीडिंग हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में तो फेस लेफ्ट रीडिंग हो जाएगी. ये सिंपल तरीका है समझने का कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेस राइट एंड फेस लेफ्ट रीडिंग. सो अभी हमने बेसिक इक्विपमेंट को भी सेट किया. उसके बाद में अगर आप डिजिटल इक्विपमेंट को सेट करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर वही है, सेम है. आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ेंगे, परमानेंट एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ेंगे. बट एज कंपेयर टू मैकेनिकल टाइप ऑफ थियोडोलाइट, दिस डिजिटल थियोडोलाइट और सेटिंग ऑफ डिजिटल थियोडोलाइट इज मच ईजियर. क्यों? क्योंकि इसमें आपको
अलग से कोई भी परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं करना है, इसमें अलग से फिजिकल कंपास आपको नहीं दिया हुआ है। एक मॉनिटर पर आपको हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल एंड आरएल सब कुछ एक मॉनिटर पर ही मिलना है और वो रिकॉर्ड भी होता जाएगा। देखिए यहाँ पर भी लेवलिंग के लिए आपको सेंटरिंग बबल भी दिया हुआ है, साथ में लेवलिंग स्क्रूज भी दिए हैं और स्पिरिट लेवल भी दिया हुआ है। ये दिस इज वर्टिकल होल्डिंग यूनिट। अगर आपको कंपास को वर्टिकली होल्ड करना है तो उसके लिए यूनिट दी हुई है, दिस इज हॉरिजॉन्टल होल्डिंग यूनिट। इसके साथ में एक स्लो मूवमेंट के लिए एक स्लो मूवमेंट यूनिट भी दिया हुआ रहता है, दीज आर दी लेवलिंग स्क्रूज। तो देखिए यही है इवोल्यूशन इन सिविल इंजीनियरिंग कि आपने बेसिक इक्विपमेंट से कैसे मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज किया या उनको कैसे आपने डेवलप किया, बट उनका वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम ही है। तो आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंट चलाना आना ही चाहिए। इफ वी कंपेयर modern equipment with digital equipment, then you can see there is a huge difference between both of the equipments। और मैंने इसके पार्ट्स आपको पहले ही बता दिए हैं, तो अब आपको समझने में ये सिंपल होगा। इसकी अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझनी है कि वाकई में थियोडोलाइट की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कैसे आप वर्टिकल एंगल की क्या यूटिलिटी हो सकती है, बट आप इसको देखिए और समझिए। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोडोलाइट। मैंने आपको बताया कि थियोडोलाइट में आप क्या कर सकते हैं, आप वर्टिकल एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सो कैसे आप वर्टिकल एंगल आपने डिटरमाइन किया और उसकी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है उस वर्टिकल एंगल की। देखिए वर्टिकल एंगल की सिग्निफिकेंस है, आपने हाइट एंड डिस्टेंस मेथड स्कूल्स में जरूर से लर्न किया होगा। सो ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस you need angle of elevation or angle of depression. So with the help of theodolite you are able to determine angle of elevation and angle of depression also। वो डिपेंड करता है कि आपको आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे यहाँ देखिए आप, अ फ्लैग पोस्ट ऑफ हाइट 2 मीटर was erected on top of a building। एक बिल्डिंग है उसके ऊपर एक फ्लैग पोस्ट इरेक्टेड है जिसकी हाइट है 2 मीटर। find RL of the top of the flag if vertical angle to the bottom and top of it were measured using a theodolite as 7 degree and 10 degree। देखिए कितना अच्छा एक क्वेश्चन है जिससे आप आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड यू आर गोइंग टू डिटरमाइन हाइट ऑफ बिल्डिंग। सो इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन क्या है कि आप वर्टिकल हाइट भी निकाल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। ये पॉसिबल नहीं होता है ऑटो लेवल के साथ में, बट थियोडोलाइट के साथ में इट इज पॉसिबल। So a staff reading of 1.245 meter was taken over a benchmark of 100 meter with a vertical angle of 0 degree, 0 minutes and 0 seconds। Means जो 1.245 है, this is the first reading जिसको आपने बेंचमार्क के ऊपर लिया है, जिसको क्या कहते हैं बेंच, जिसको बैक साइड कहा जाता है। सो जब तक आप बैक साइड नहीं लेंगे तब तक आप एच आई कैसे निकाल पाएंगे। सो देखिए आपने सबसे पहले किसी डेटम पर या किसी बेंचमार्क पर जिसका आर एल 100 मीटर्स था वहां पर आपने बैक साइड ले ली। उसका क्या आपने प्रिंसिपल यूज किया, दैट द आई पीस is having vertical angle of 0 degree, 0 minutes and 0 second। मीन्स आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर पॉइंट एक ड्रॉ किया है और रीडिंग्स ली। नाउ अब आप देखिए यहाँ पर लाइन ऑफ साइट क्या क्या थी, दैट आपको बॉटम को भी फोकस करना है और टॉप को भी फोकस करना है, किसके, फ्लैग पोस्ट के। सो बी पॉइंट बी इज बॉटम ऑफ फ्लैग पोस्ट एंड पॉइंट ए इज टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट। और आपने बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इंस्ट्रूमेंट की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपने एंगल लेना स्टार्ट किया। तो बी पर एंगल था 7 डिग्री एंड ए पर एंगल था 10 डिग्री। तो देखिए आपके पास में दो एंगल्स हैं। नाउ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग वी आर गोइंग टू डिटरमाइन आर एल ऑफ बी। तो आप देखिए आर एल ऑफ बी तो हम निकालेंगे, साथ में हम हाइट भी निकाल लेंगे,
बिल्डिंग की. सो हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट AB is given as 2 meters. एंगल BP dash C आप देखिए, एंगल BP dash C is 7 degree and angle AP dash C is 10 degree. So in triangle BP dash C, अब यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग लगानी है. कहाँ पर? BP dash C पर. BC by P dash C equal to 10 7 degree. ओके, बहुत सिंपल सी है. सो आपने 10 को कॉट में कन्वर्ट किया और इक्वेशन आपके पास में बना गई एस P dash C equal to BC cot 7 degree. ऐसे ही आपने ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल लिया, कौन सा? AP dash C. उसके लिए फाइनल आपके पास में जो इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी P dash C equal to AC cot 10 degree. सॉरी, तो यहाँ पर आप देखिए AC cot 10 degree. अब AC क्या है? AC is AB plus BC. सो AC को आपने AB plus BC लिखा cot 10 डिग्री के साथ में. तो फाइनल इक्वेशन आपको मिली P dash C equal to AB is equal to 2 meters, जो कि फ्लैग पोस्ट की हाइट है. तो 2 plus BC cot of 10 डिग्री. सो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में BC की वैल्यू आएगी 4.64 मीटर्स. BC, ये देखिए यहाँ पर BC की वैल्यू इज 4.64 मीटर्स. और इसके नीचे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है ही, तो आप देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग भी निकाल सकते हैं. हाइट ऑफ बिल्डिंग आपने निकाल ली, बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन RL ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट. सो RL ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज RL ऑफ बेंचमार्क, जो आपने यहाँ निकाल रखा है, पहले से आपको गिवन था 100 मीटर्स प्लस स्टाफ रीडिंग जो आपने फर्स्ट रीडिंग ली बेंचमार्क पर, जिसको बैक साइड का 1.245 मीटर्स प्लस CB अभी आपने कैलकुलेट किया CB प्लस PA. सो 100 प्लस 1.245 प्लस 4.64 प्लस 2 107.885 meters is RL of the top of flag post. मतलब 7.885 मीटर इज टोटल हाइट. किसकी हाइट? फ्लैग पोस्ट की भी प्लस बिल्डिंग्स की भी. अब आप ये कॉम्बिनेशन यूज करके बिल्डिंग की हाइट भी निकाल सकते हैं अलग से, और फ्लैग पोस्ट की हाइट तो आपको गिवन है. तो ये एक एप्लीकेशन है थियोडोलाइट की जो आपको वर्टिकल एंगल निकाल कर दे देता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वर्टिकल एंगल यू आर एबल टू डिटरमाइन हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो इसमें क्या है, अगर आपको एंगल रीड करना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप स्टाफ रखें आपके पास में. एंड जैसे यहाँ देखिए फ्लैग पोस्ट है, तो फ्लैग पोस्ट का बेस आपको अगर दिख रहा है तो उस बेस पर आप एंगल रीड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल कंपास. और अगर आपके पास में डिजिटल थियोडोलाइट है तो आपको एंगल भी रीड करने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक. आपको ध्यान क्या रखना है कि आप फोकस सही तरीके से कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को. सो मूविंग टूवर्ड्स EDM. नाउ EDM की क्या ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत आपको सर्वेइंग में क्यों पड़ी? बिल्कुल, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन प्लस रिफ्लेक्टर और स्टाफ, तो उसके लिए आपको बार बार या तो टेप यूज़ करना पड़ेगा या आपको चेन यूज़ करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आपके पास में EDM है तो आप बिना टेप के, बिना चेन के ऑटोमेटिक रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो EDM इज ऑल्सो टर्म्ड एज GOD मीटर. GOD मीटर ये नाम आप याद रखिए. एंड द फुल फॉर्म ऑफ EDM इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट. नाउ EDM की जरूरत तो पड़ी, लेकिन EDM के पहले ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो आपने सर्वेइंग में यूज किया, या जो एक उसका कॉम्बिनेशन आपको थियोडोलाइट में गिवन था? सो वो इंस्ट्रूमेंट था, एक इंस्ट्रूमेंट रादर वी कैन से टेलीस्कोप, जिसको कहते हैं टेक्योमीटर. सो टेक्योमीटर इसके पहले था, जिसने डिस्टेंस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंपल कर दिया. कैसे? बाय यूजिंग टेक्योमेट्रिक इक्वेशन. सो टेक्योमीटर में क्या होता है, स्टेडी वायर्स होते हैं. देयर आर 3 स्टेडी वायर्स, टॉप हेयर, सेंट्रल हेयर एंड बॉटम हेयर. सो उनको स्टेडी वायर्स कहते हैं. ऐसे ही एक तो स्टेडी वायर होते हैं, एक मूवेबल हेयर मेथड होती है, स्टेडिया हेयर मेथड होती है. सो जिसमें स्टेडिया वायर्स आर स्टैटिक,
उसको स्टेडी हेयर मेथड बोलते हैं, जिसमें वायर्स मूव हो रहे हैं उनको मूवेबल हेयर मेथड बोलते हैं. बट द बेसिक इक्वेशन ऑफ tachymetry is D equal to Ks plus C. K is multiplying constant and C is additive constant. और जो S है, S is staff intercept, means top hair reading minus bottom hair reading. So with the help of tachymeter you can determine horizontal distance between 2 points. बट वो कितनी एक्यूरेट है उसके लिए आपको बार बार चेक लगाने पड़ते हैं, मीन्स आपको चेन या टेप का बार बार यूज तो करना ही पड़ता है. सो ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिसमें आपको ना चेन यूज करना पड़े ना टैप यूज करना पड़े, और कोई ऐसा इक्विपमेंट आपके पास में हो जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली आपको डिस्टेंस डिस्प्ले हो जाए. सो वो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. सो EDM determine length using phase changes that occur as electromagnetic energy of known wavelength travels from one end of a line to another end and returns. So the process is based on electromagnetic waves. Now electromagnetic waves का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूटिलिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही क्यों? सो वैसे तो यहाँ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मेथड है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या खासियत है? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उस पर विंड स्पीड का कोई असर नहीं होता है. अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्स की, तो अभी तो आपके पास में क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, एक रिसीवर है, दूसरा स्टेशन. तो उन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो उसके बीच में तो विंड ही है. सो दैट इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय विंड स्पीड. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो विंड स्पीड से उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उस वेव्स की जो वेलोसिटी है वो विंड में भी उतनी ही रहती है. देयर इज नो एनी चेंज इन वेलोसिटी. सो विंड स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए EDM इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो और उसी का प्रिंसिपल ये यूज करता है. नाउ अब आपके पास में डिजिटल थियोडोलाइट भी है, ठीक है, बट उसके साथ में आपको अलग से EDM यूज करना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन करना चाहते हैं. So you have to carry 2 types of instruments. One is theodolite and another one is EDM. So 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना, बार बार उनको यूज करना, वो भी एक टीडियस जॉब है, जिससे एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको EDM को भी तो सेट करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कहीं पर भी रखकर, कैसे भी रखकर और रीडिंग्स ले लेंगे. उसको भी आपको सेट करना है एज पर योर कन्वीनियंस, तभी तो आपको प्रॉपर रीडिंग्स मिलेंगी. सो टोटल स्टेशन के साथ में, सॉरी, थियोडोलाइट के साथ में अलग से EDM यूज करना कर तो सकते हैं आप, लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर वो भी रहता है. तो उसके लिए क्या किया गया है हम अभी आगे देखेंगे. नाउ आप देखेंगे कि जो हैंड हेल्ड EDM होता है वो आपने कॉलेज में भी देखा हुआ है. दे आर वेरी हैंडी, cheap and can be used with accuracy of 10 mm. देखिए इनकी भी रेंज होती है, कुछ की रेंज तो फीट में आती है, कुछ की रेंज मीटर में आती है. कोई 50 फीट तक आपको एक्यूरेट डिस्टेंस दे देता है, कोई 50 मीटर तक भी आपको एक्यूरेट डिस्टेंस दे देता है. सो जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि आप कितने रेंज तक का इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं और वो कितना प्रिसाइज है. मीन्स ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी होगी. बट
फिर भी आप जनरली अगर आपको अगर जनरल वर्क करना है तो 50 फीट तक का ईडीएम काफ़ी होता है, उससे आप वर्क कर सकते हैं। ना जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको डिस्टेंस भी निकालनी है, एंगल्स भी निकालनी है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे। एक तो डिजिटल थियोडोलाइट भी यूज करना पड़ेगा, उसके साथ में ईडीएम भी यूज करना पड़ेगा। सो उसका कोई कॉम्बिनेशन है क्या? यस, कॉम्बिनेशन इज देयर। सो डिजिटल थियोडोलाइट प्लस ईडीएम इज टोटल स्टेशन। अगर आप टोटल स्टेशन को सिंपली समझना चाहते हैं, then total station is a combination of EDM plus digital theodolite. So total station integrates the functions of a theodolite for measuring angles. जैसा मैंने आपको बताया, theodolite is capable to measure horizontal as well as vertical angles, and EDM for measuring distance. EDM आप electronically horizontal distance measure कर लेंगे, and digital data and a data recorder. So आप जो आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं उसको भी तो आपको रिकॉर्ड करना है। सो एक डेटाबेस भी इसमें साथ में रहता है जो डेटा को रिकॉर्ड भी करेगा और आपके हिसाब से यूजेबल डेटा कन्वर्ट करके भी देगा। सो टोटल स्टेशन देखिए कितना एक इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसने वर्किंग तो फास्ट की, आपको प्रिसाइज डेटा भी दी है, और साथ में मतलब आप 3 ऑपरेशंस एक साथ में इसमें कर सकते हैं। कौन कौन से? वर्टिकल एंगल भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल भी निकाल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ टोटल स्टेशन, देन टोटल सॉल्यूशन फॉर सर्वेइंग वर्क। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको टोपोग्राफिक सर्वे करना है, तो टोपोग्राफिक सर्वे में आपको मैंने जैसा आपको बताया था कि आप नेचुरल रिसोर्सेस अगर शो करना चाहते हैं मैप पर, तो उसके लिए आपको एलिवेशंस भी लेने पड़ेंगे। कौन से एलिवेशंस लेने पड़ेंगे? हॉरिजॉन्टल एंगल भी लेना पड़ेगा, वर्टिकल एंगल भी लेना पड़ेगा, मींस एंगल भी लेना, एलिवेशन भी लेना पड़ेगा, डिप्रेशन भी लेना पड़ेगा, साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चाहिए। सो उसके लिए आप टोटल स्टेशन यूज कीजिए, तो आपको टोटल सॉल्यूशन वो दे देगा। नाउ मोस्ट एक्यूरेट एंड यूजर फ्रेंडली, बहुत सिंपल इसकी वर्किंग है। आपको क्या करना है? आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट्स करने हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट्स की इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं। टेम्पररी एडजस्टमेंट्स कीजिए। जो भी डेटा इसमें फीड करना है, सिंपल सा डेटा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है वो आपको फीड करना पड़ेगा, आरएल क्या है बेंचमार्क का वो आपको फीड करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ टोटल स्टेशन। सो गिव्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में आपको ये पोजीशन दे देगा, मीन्स एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ भी दे देगा, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट भी दे देगा, और आपको साथ में डेटम भी दे देगा, मीन्स स्लोप डिफरेंस भी दे देगा। सो दो तरह के तो एंगल देगा और एक डिस्टेंस देगा। सो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में आपको पोजीशंस मिल सकती है। सो EDM is fitted inside the telescope, जिससे आप horizontal distance निकाल सकते हैं, and digital display which provides readings. So easily आपको रीडिंग्स भी इसमें मिल जाएंगी। तो ये देखिए टोटल स्टेशन, सिंपल सा टोटल स्टेशन है। इसमें जो आईपीस है, आईपीस थोड़ा सा इसके अंदर आप देखेंगे बिगर साइज का, क्यों? क्योंकि इसमें आईपीस के अंदर ईडीएम भी इनबिल्ट है। बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। आप कोई बेसिक ऑटो लेवल यूज कर लीजिए या टोटल स्टेशन यूज कर लीजिए, सबका ऑपरेशन सेम ही होता है, बट इसके अंदर आपको कुछ डेटा फीड करना पड़ेंगे। सो उनको आप ध्यान में रखिए। इसमें भी एक बैटरी होती है, डिस्प्लेयर है, साथ में फंक्शनल कीज हैं, फंक्शनल कीज यूज्ड टू फीड दी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फीड करना है, अगर आपको आरएल फीड करना है, तो उसके लिए आपको फंक्शनल कीज यूज करनी पड़ेगी। बाकी सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग वैसी ही होती है। यहाँ पर स्प्लिट लेवल भी आपको गिवन है, एंड सेंटरिंग बबल भी आपको गिवन है, और आईपीस को होल्ड करने की डिवाइस भी गिवन है, हॉरिजॉन्टली सिस्टम को होल्ड करने की डिवाइस भी गिवन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। नाउ इसमें रीडिंग के लिए आप क्या यूज करेंगे? सो इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे टोटल स्टेशन हो गया, डिजिटल थियोडोलाइट हो गया, या ईडीएम हो गया, उनके लिए आपको एक रिफ्लेक्टर यूज करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं टोटल स्टेशन की बात करूँ, तो जो रिफ्लेक्टर है उसको प्रिज्मा भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ इसमें जो
आपको एक फोकसिंग यूनिट इसमें दिख रही है, इसमें प्रिज्म है एक, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा और फिर से टोटल स्टेशन के पास में सेंड करेगा ताकि आपको रीडिंग्स डिस्प्ले हो सके। तो देखिए ये एक सिंपल सा रिफ्लेक्टर है, मीन्स आपको सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को जो कि रिफ्लेक्टर होगा उसको सेट करना है, उसको फोकस करना है एंड नथिंग एल्स, आपको रीडिंग्स अपने आप मिल जाएंगी। सो इससे प्रोसीजर तो काफ़ी फास्ट हुआ ही हुआ, आपको प्रिसाइज डेटा मिलना शुरू हो गए, जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है टोटल स्टेशन का। नाउ functions of TS, if we talk about functions of TS, then simultaneously आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। then computing the point elevations simply and computing the coordinates of every point, मैंने बताया आपको x y z डायरेक्शन में आपको पॉइंट्स की रीडिंग्स मिल जाएंगी, आप कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। रिमोट एलिवेशन मेजरमेंट एंड रिमोट डिस्टेंस मेजरमेंट, एरिया कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर फैसिलिटी फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इंस्ट्रूमेंट, आपको जो भी आपने डेटा रिकॉर्ड किया है टोटल स्टेशन में वो आप सॉफ्टवेयर में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। एंड जो आपने इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रूमेंट में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स इजीली ऑटो कैड पर ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड फॉर्मेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, आप यूनिट्स भी इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए एक टोटल स्टेशन से सर्वे किया हुआ है, हमारे कॉलेज का ही ये सर्वे है। दिस इज IAS IPS बिल्डिंग जहाँ पर हमारी क्लासेस लगती हैं, उसके सामने का ये फ्रंट रोड है। उसके पहले यहाँ पर पेवर्स नहीं लगे हुए थे, तो उस टाइम का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वही यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। और ये IBMR है, ये पार्किंग है जहाँ पर फैकल्टीज कार पार्किंग करती हैं, ये रीप्लांटेड ट्री है। एंड ओपनिंग्स भी आप देख सकते हैं जहाँ से बाइक्स एंड कार्स आती हैं। दिस इज ग्रीनलैंड एंड यहाँ पर हटमेंट्स थे, यहाँ फार्म है जहाँ पर आजकल IBMR के सामने जहाँ पार्किंग बनी हुई है, जहाँ पर बाइक्स भी आजकल पार्क करवाए जाते हैं। ये एक वेल है जहाँ आप अभी कॉलेज जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर एक वेल भी है। और ये दिस इज आर्किटेक्चर रोड, जो कि आपको आर्किटेक्चर रोड जो जो आपको कॉलेज के सामने जो रोड मिलती है वो है। ये जो एरिया है यहाँ पर स्टूडेंट पार्किंग है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, ये स्टूडेंट पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी बाइक्स पार्क करते हैं। सो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, दीज आर दी पॉइंट्स गिवन बाय टोटल स्टेशन। देखिए हमने बाउंड्री पर पॉइंट्स लिए, उसके बाद में ये पॉइंट्स जो थे उनको सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र किया, और उस सॉफ्टवेयर से हमने मल्टीपल पॉइंट कमांड लेकर ऑटोकेड में इन पॉइंट्स को ट्रांसफ़र किया और लाइन को ज्वाइन किया, हैचिंग की और इस तरह का प्लान बना लिया। तो देखिए आप अगर आप एक बेसिक ऑटो लेवल से अगर सर्वेइंग करेंगे तो ये प्लान बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही टोटल स्टेशन से प्लान बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो आपको ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जो जानकारी दी जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके प्रोफेशनल नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। सो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेकंड जो क्विज़ है वो अपलोड कर दिया गया है CMS पर। सो आप टेस्ट दें और अपनी अटेंडेंस ले लें टेस्ट के बेस पर। और अगर आपको कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क क्वेरी आल्सो। थैंक यू।